Namaskar and welcome back to Unscripted with Saloni. Let me just wait for people to join in. Okay. Hello everyone. Namaskar and a heartfelt welcome to all of you to Unscripted with Saloni. You all know, I know you all are waiting for Dr. Sandeep Kochhar to join in, but he'll be joining in 5 minutes. And I'm super excited to do another session. Today we're going to talk about something very, very important and normal, which happens to everyone. So we'll know the significance of that. And Yashwanji, please send your details after some time because all these messages are going to go up and then I will have problem reading them. So once we are going to ask questions from Dr. Sandeep Kochhar, then you start the, sending your details. Till then, namaste. Namaste. Vrisha Singh, namaste. Thank you so much. Hello, Shivam. Okay. So let's just join in. Dr. Sandeep Kochhar is here. Hello. Yeah, How hi are Saloni. you? I'm very good. How about you? Good to see Very well, you. thank you. Same here, same here. I think people are more happy than me to see you and do another session. I've been flooded with messages and I've told them I will read the messages. Last time there Sure. was technical problem. So yes, there are a lot of people waiting for your answers and queries. But Sure, I we will can also go. like to tell everyone that if you have more questions, I want more queries, then you can always contact Sandeep ji. Please give them their details so that they know what and where, how to contact you. You are asking me? Yes, please, Yeah, please okay. Oh, tell sorry. them yes once because No, they'll know how where to I contact you was, yeah, properly. sure. I was looking at you. You're wearing my favorite color actually. This green is my Ah, favorite. Great. okay, You're thank looking you, great. Good. Okay, thank so you yeah, so much. you're welcome. So yeah, I have a website called sandeepkochhar.com, and up to Google has been, always a great way to connect with anyone. Yes, So you put my correct. name, Sandeep Kochhar, and you will find everything about me. Everywhere. Yeah. Yes. So please Yeah. contact him for more details if you want and want to know more about your horoscope, vastu, whatever you want. Face reading, palmistry, he knows everything. So okay, let's start the session today. I'm going to ask you about last time the way I told you that I want to ask you that is about dreams. Is there Mhm. any significance of dreams? When I've I been list. hmm. Yes. No, no, you continue. Yeah, you were saying something. Yeah. Because I have been, listening to my mother and my mother-in-law and a lot of other people, the elderlies that, ये सोच सपना आया तो इसका मतलब ये है, ये टाइम पे आया तो इसका मतलब ये है. So, is it really true या मतलब बस ऐसे ही है? What is it? See, dream का भी एक significance है, and it says there's everything has a reason. I believe in that, and dream do play a good role in our life. But the other side of story is that dream जो है it get influenced with the way you think. सो आपके सबकॉन्शियस में Correct. जो बहुत सारे थॉट्स स्टोर होते हैं, बिफोर गोइंग टू बेड, और अदरवाइज यू आर इन सम सिचुएशन रिलेटेड टू दैट, और मे बी सम अनफुलफिल्ड ड्रीम्स इन योर लाइफ, जो आपके मन में जहन में एक चीज रह जाती है कि आई रियली वांट जी. टू, ये मैं इसे पूरा करूं और मेरा ये एम्बिशन है या मेरा जो भी है, तो उससे रिलेटेड जी, ड्रीम जी. जो है वो हमेशा आपको हॉन्ट करते हैं, कहना नहीं चाहिए था मुझे, बट व्हाट आई एम सेइंग इज या इट यू कीप ऑन सीइंग ऑल He दोस. makes you recall whatever you really want subconsciously, Absolutely, basically. yes. और दूसरा सलोनी एक साइड Okay. ये भी है कि sometime I also believe in you may get a dream from nowhere, anything which you have not thought about, it is not there in your subconscious, and it is giving you Correct. some, some another experience related to that. So that may give you some kind of indication also.
that something is going to happen in your life, good or bad, depending on what state you are in. Intuition kind of thing. Yes, sir. So I have a strong belief in that. And when I see a horoscope, many a times I have asked my clients, do you get dreams? Do you remember your dreams? And don't you feel that dream always give you some kind of hint for your future activities? And they say yes. Okay. So many people are blessed to get some insights, from somewhere through dreams. So not everyone, but they are few, seeing the horoscope. So there is I can tell them. basically, yes, in horoscope basically is something which tells you that there is a possibility to have that intuition or something like that. Absolutely. And फिर कुछ traditionally we have some kind of rules set for dreams कि अगर Okay, yes. सांप ने काट लिया है और आप मर गए तो सपने में, तो कोई आपको धोखा दे सकता है, because snake is राहु, या somebody can deceive you, you have to be very cautious. फिर उसका दूसरा इंटरप्रिटेशन है कि अगर आपको काट लिया है लेकिन आप बच गए, आपको कुछ नहीं हुआ, खाली काट तो वो देगा, तो you might get abundance of wealth. अचानक आपको गेन्स कहीं वेल्थ. Completely opposite. Yes, it completely. फिर एलिफेंट देखने का होता है, व्हाइट एलिफेंट देखने का होता है, तो लॉट ऑफ पीपल दे सी गॉड्स ऑफ वेरियस फॉर्म्स. सो देयर आर लॉट ऑफ ऑस्पिशियस ड्रीम्स, देयर आर लॉट ऑफ फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज, नाइटमेयर्स आल्सो, जो इंसान को कोई अफेक्ट करता है इमोशनल लेवल पे. So depending on various factors, but I always tell people, then whoever they meditate, then they can channelize this kind of energy in the right manner, in the sense what they can get that insights. तो वो उनको hint और वो सच. But that's only when they know that what it is, because कई बार तो होता है कि लोग सोचते हैं कि अरे ऐसे मुझे ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं, and why am I टाइम का भी होता है कुछ कि इतने बजे आएगा तो ये सच हो जाता है और इतने बजे आएगा तो it's just like that. ऐसा भी बिल्कुल जी. ब्रह्म मुहूर्त है, अर्ली मॉर्निंग 4 to 5:30 मान लीजिए, वो टाइम में जो ड्रीम आते हैं, दे आर सपोज टू बी ट्रू ड्रीम्स. एक्चुअली दे माइट कम आउट टू बी ट्रू, बट वो कई बार याद नहीं रहते, कई बार इंसान भूल जाता है. तो अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड हैप्पी है तो आप जरूर, आपको लगता है कि आई फील कि व्हेन यू गेट अप विद अ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, then you can always relate that something good is going to happen. So I have a complete belief in that. So it really helps actually. और उसपे मैंने ड्रीम पे एक पोएट्री लिखी थी सलोनी की, ये ख्वाब भी ना जाने किस फिराक में रहते हैं, ये ख्वाब भी ना जाने किस फिराक में रहते हैं, पूरा तो होना चाहते हैं पर सोने भी नहीं देते. So even Abdul Kalam has said that ये सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होने चाहिए जो आपको नहीं सोने दे, जो आपको नहीं सोने दे. So I think that is what we are all moving towards. Even I believe in that. I believe in that. Ambitions को पूरा करने में मेहनत करनी चाहिए. तो I am an astrologer, but I also believe that there is a very very strong connection between your hard work and your luck. So luck and hard work goes hand in hand. मेहनत करने से ही चीजें मिलती हैं. Yeah, if it is a good time, you get success more than what you can imagine. And what if it is a bad time? Then I always say work hard and pray harder. Correct. I completely believe in that. So basically it does matter कि आपको कोई ड्रीम. अच्छा, आपको कभी आया है इंट्यूशन, ऐसा कभी आपके साथ होता है कि आपको ड्रीम आया और वो सच हो गया और ऐसा कुछ? Yeah, many times I get to see a few things which I can relate to later when that thing have occurred. Because पहले तो बहुत मुश्किल होता है कि आपको कोई सपना याद रह जाए पहली बात, और उसके बाद उसको रिलेट करना कि भाई ये क्या मैंने देखा, इसे कैसे रिलेशन. लेकिन जब वो चीज हो जाती है तब आप रियलाइज करते हैं कि दिस इज व्हाट यू वर थिंकिंग और गेटिंग समथिंग आइडियाज लाइक दैट. So everything, as I've said already, that everything has a reason and connection. तो उसको ठीक से रीड करना, ठीक से एनालाइज करना और उसको implement करना in the right manner is a good thing. So how do you do that? Can you help our viewers to know? मतलब उनको तो कुछ पता नहीं है, जैसे मतलब हम लोगों को कुछ पता नहीं होता है generally कि there are a lot of people they just get just a gist of it, as in कि इतना परेशान भी ना हो, and then don't think too much about dreams. Yeah, because I've been getting queries to know whether it really matters, and because कई लोगों को होता है, छोटे बच्चे भी होते हैं, उनको बहुत dreams आते हैं, and then they get up and they start crying and stuff like that. So छोटे बच्चे is there a remedy? हाँ, जो टॉडलर्स हैं उनको ड्रीम्स आते हैं, तो वो उनके पास बर्थ का कनेक्शन होता है एज पर द बिलीफ सिस्टम कि दे स्टिल हैव सम मेमोरी फ्रॉम देयर एंड देन दे कीप ऑन गेटिंग देयर इन देयर ड्रीम्स. बट वंस दे ग्रो अप, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो दे फॉरगेट एवरीथिंग फ्रॉम देयर.
बट ये जो ड्रीम है, इसको मैं तो यही कह सकता हूँ कि ड्रीम सबकॉन्शियस स्टेट का की स्टोरी है, और वो सबकॉन्शियस स्टेट की स्टोरी को आप एक्टिवेट कर सकते हैं या उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, द राइट वर्ड, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग रिलेटेड टू योर सबकॉन्शियस, एंड द राइट वे इज, ओनली वे इज मेडिटेशन. So people Meditation. who meditation, they can activate those ideas and thoughts, and they get those intuitions either just like that or maybe through dreams. Correct, correct. Okay. So, and what about nazar lag jati and all that? होता है ऐसा? Evil eye, they say evil eye, you know. देखिए, मैं इसको दूसरे तरह से सलो नहीं करना चाहता हूँ. आई एम नॉट इनटू सुपरस्टिशन ऑफ एनी काइंड. मैं Yes, बचपन से correct, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ, एंड जब correct. अभी एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ सिंस लास्ट 20 years, मैं आई नेवर लुक एट अ नेगेटिव साइड ऑफ एनीथिंग, बिकॉज ये Correct. पूरे जो दुनिया No, है. no, what I mean is, जैसे मतलब कोई अच्छा लग रहा है तो बोलते हैं काला टीका लगा लो, उससे कोई फर्क मैं पड़ता उसी है? नॉट लाइक मैं नजर बट. मैं उसी पे आ रहा हूँ. फर्क क्या पड़ता है बताता हूँ. अच्छा, तो अच्छा. दिस वर्ल्ड इज हैज टू साइड. वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव. दिन और रात, Correct, और डर correct. और उजाला, और यंग यांग जैसे जी, बोलते हैं, एनर्जीज की बात हम करते हैं. जी, जी, तो जी, तो जी. ये वर्ल्ड, उसपे दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं बराबर बराबर, लेफ्ट और राइट. तो जी, उसमें जो इंसान हैप्पी जोन में रहता है, पॉजिटिव जोन में रहता है, ऑप्टिमिस्टिक जोन में रहता है, स्पिरिचुअल जोन में रहता है, ही विल ऑलवेज बी सराउंडेड बाय दोस पॉजिटिव एनर्जीज. तो वो नेगेटिव एनर्जी उसको इम्पैक्ट नहीं करती. अगर वो इंसान बिल्कुल. कहीं वीक मोमेंट में है एस्ट्रोलॉजिकली, कि वो जैसे हम देखते हैं कि अरे ये तो बहुत ही डिप्रेसिंग टाइम है, तो मैंने कितनी बार अपने क्लाइंट्स को बोला इतने सालों में, तो बोले हाँ ये वो टाइम था ना जब किसी ने हमारे ऊपर कुछ करा दिया था, या किसी ने जी, हमारे ऊपर बुरी नजर का साया था, जो भी ऐसा कहते हैं. जी, बट एस्ट्रोलॉजिकली उसका आंसर यही है कि आपका ये वीक मोमेंट था, आपका एक लो फेज था जिंदगी का, जो आपको जी, इमोशनली मेंटल लेवल पे एकदम आपको ड्रेन आउट करना था, जिसकी वजह से आप जी. डिप्रेस हो रहे थे, आप सिचुएशन में फंस गए थे. तो उसमें ए बी या सी ने नहीं कराया. इट इज अबाउट योर प्लैनेट्स विच हैज इन्फ्लुएंस यू इन दैट मैनर. पर दूसरा साइड ये भी है कि जैसे बंगाल है, बंगाल में काफी लोग ये इन एनर्जीज को यूटिलाइज करते हैं. इसको तांत्रिक के कैटेगरी में डाल सकते हैं, या इसको दूसरे टोने टोटकों में डाल सकते हैं. बहुत सारी ऐसी चीजें जी. हैं जहाँ पे वो लोग किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं नेगेटिवली. तो अगर उसका वक्त खराब है तो वो उसका इन्फ्लुएंस उसके ऊपर पूरा हो जाता है, तो हो उसको अफेक्ट करता है. अगर वो इंसान का वक्त ठीक चल रहा है, या अगर दूसरा साइड वो स्ट्रांग है बाय मेडिटेटिंग, बिकॉज मेडिटेशन मीन्स पॉजिटिव. जो एनर्जीज हैं जो आपको आपको आपके आपको सराउंड करती हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करती जी, हैं. फिर कोई भी इम्पैक्ट आता है तो वो उससे वो पहुंच नहीं पाता. So people who are बिल्कुल. spiritual, they are always happy. They say, I don't believe in astrology. I don't need to do that. I'm happy with my space. God has been kind. I'm doing my prayers. I'm doing my meditation. वो लोग एक अलग जोन में चले जाते हैं. उनको कोई चीज इम्पैक्ट नहीं करती. तो I tell everyone कि भाई आप भी उस जोन में जाइए, ताकि आप खुश रहें, जी, पॉजिटिव रहें, और करेक्ट. फिर आप ये सब नेगेटिव एनर्जी से बच जाएंगे. तो चाहे उसको आप नजर बिल्कुल. कहिए, इसको बैड एनर्जी कहिए, कुछ भी कहिए, you can overcome yourself All from this. that. Oh, okay, great. So basically, positivity or good vibes can fight anything in life, and you'll Absolutely. be happy. बिल्कुल. You'll be happy. तो Meditation, basically, अच्छा, meditation क्या? Last time जैसे हमने बात की थी कि meditation कैसे करें. We could not really talk about it much. And मैंने अभी recently आपका जय मदान जी के साथ भी देखा था वीडियो, in which you were talking about chakras and gemology and stuff. तो मेडिटेशन से ही बेसिकली कहते हैं कि चक्र खुल जाते हैं, एंड देन यू रीच दैट स्टेट ऑफ एम्पावरमेंट wherein there is nothing really matters to you. So does it really happen? देखिए, ये एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, एंड इसके बहुत सारे लेयर्स हैं, एंड इसको चक्र अंडरस्टैंड करना, और फिर उसको एक्टिवेट करना, और उसको जी, यूटिलाइज करना बहुत बहुत सालों का काम है. और उसमें नॉट एवरीबॉडी कैन लर्न दैट और इवन वर्क ऑन दैट. तो ठीक है, आपने करेक्ट. किताब में पढ़ लिया, आपने कुछ कहानी सुना दी, वो एक अलग बात है. बट इसको जो रियल जी, फील कर सकता है वही, जिससे एक मैं आपको बताता हूँ कि स्पिरिचुअल साइड में पीपल हु फॉलो गुरुज ऑफ दैट लेवल, अभी वो गुरु बहुत कम है दुनिया में. वो एक उसमें एक टर्म यूज होता है शक्तिपाद. शक्तिपाद दीक्षा होती है, जिसमें जी. गुरु के पास वो पावर होती है जो आपके चक्रास को ओपन कर देता है, एंड देन द पर्सन बिकम्स ऑलमोस्ट एनलाइटेंड. तो वो जो लोग उस जोन में चले जाते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू ओपन ऑल देयर चक्रास, एंड विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन एवरी डे दे हैव टू डू इट. तो वो उनको यूटिलाइज करते हैं, दे बिकम डिफरेंट पीपल टोटली. एकदम हैप्पी जोन में रहते हैं, एकदम ब्लिसफुल स्टेट में रहते हैं. उनको किसी चीज का इम्पैक्ट नहीं होता, एंड दे आर ऑलवेज हैप्पी नो मैटर व्हाट. चाहे वो मटेरियलिस्टिक लाइफ हो,
या उनकी अदरवाइज कोई भी जर्नी, ऐसा नहीं है कि वो लोग जंगल में जाके साधु या रेनन्सिएशन ले लेंगे, वो लोग इसी इसी हमारे नॉर्मल जिंदगी में वो लोग हमेशा खुश रहेंगे, उनके चेहरे पे आप ग्लो देखेंगे, दे आर ऑलवेज, यू विल फील हाउ हैप्पी दे आर, हाउ काम दे आर, कैसे भी वो किसी भी बात पर रिएक्ट नहीं करते, बिकॉज हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है जो क्रिएट होता है रिलेशनशिप का, स्पेशली व्हेन यू रिएक्ट जी ऑन स्मॉल लिटिल थिंग्स, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे हो या पर्सनल लेवल पे हो। और जितने लोग हैं जो जो स्पिरिचुअल जोन में होते हैं, वो दे बिकम सो वाइज कि उनको कोई एग्रेशन का प्रॉब्लम नहीं है, उनको कभी कोई ईगो का प्रॉब्लम नहीं है, दे बिकम टोटली ब्यूटीफुल पीपल, अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, जिनके जिनके वाइसेस जीरो हो जाती हैं, तो दे आर द वन हु आर ब्लेस्ड, एंड दिस इज व्हाट दे कॉल द स्टेट ऑफ ब्लिस। सो चक्रा इज चक्रा के चक्कर में आप मत पड़िए, खाली उसको ये जानने की कोशिश करिए कि उसका रिसोर्स क्या है एंड हाउ यू कैन बी एबल टू ओवरकम इट। खाली बुकिश नॉलेज से काम नहीं चलता है, यू हैव टू फील इट एंड देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन द राइट वे। यही रीजन एक्चुअली वही है, क्योंकि क्या होता है आजकल बहुत ज्यादा एवरीबडी इज लाइक मेडिटेशन चक्र ये वो, बट दे डोंट नो मच अबाउट इट, राइट? और जितना पढ़ लिया उतना गूगल में जो आता है वो देख लेते हैं, एंड यू नो हाउ इट इज। ओके, सो वैसे भी मैं एक लाइन इसमें ऐड करना चाहता हूँ सलोनी, कि ये चक्र जो है ये पास्ट बर्थ से रिलेटेड है। जरूरी नहीं कि आप अगर कसम खा लें कि मैं अपने सारे चक्र खोल के रहूंगा, वो पॉसिबल ही नहीं। तो आप कहाँ से आए हैं, कितने चक्र आपके ऑलरेडी एक्टिवेटेड हैं, आप कौन से लेवल पे हैं आज इस बर्थ में, उसके बाद यू कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल। यस, सो वो तो सारी कहानियां हैं बेसिकली, मतलब जन्म लग जाते हैं चक्र खोलने के लिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो पीपल से कम टू मी एंड डू a 3 days course and I will activate your chakras। वो मैंने कहा चक्रों का चक्कर, दैट इज व्हाट आई सेड। करेक्ट, एकदम सही बोले आपने। अच्छा, तो एक शायरी सुना दीजिए इसी बात पे, कोई सी भी, whichever, कुछ नया आपने लिखा है तो। नया तो मैंने नया तो शायद नहीं लिखा। तो कुछ भी पॉजिटिव बोल दीजिए, बिकॉज अभी तो बहुत जरूरत है पॉजिटिविटी की। स्पिरिचुअल साइड के लिए मैं बोल सकता हूँ कि जी जी, देखा नहीं पलट के तेरे एतबार में चलते चलते। अब ये एतबार किस पे है, ऊपर वाले पे, कि मुझे पीछे देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई बिलीव कि गॉड इज फॉलोइंग। इसके पीछे स्टोरी भी है, कि जब वो भगवान के साथ जा रहे थे, उन्होंने कहा था पीछे मुड़कर मत देखना, मैं तुम्हारे साथ चलता रहूंगा। तो हुआ क्या कि रास्ते में रेत आ गई और गरम गरम उसके पैर जलने लगे, तो उसे तो भगवान के, उन्होंने कहा मुझे कैसे पता चलेगा तुम आ रहे हो, तो उसने कहा कि भगवान ने कहा कि घुंघरू की आवाज आएगी, तो रेत चली गई घुंघरू में, तो आवाज आनी बंद हो गई। तो उसने कहा मेरे पैर जल रहे हैं ये। फिर वो आगे उसको क्रॉस कर दिया। फिर उसने कहा देखिए आपने मुझसे झूठ बोला भगवान, जब रेत थी तो खाली मेरे ही पैर थे, आपके पैर थे ही नहीं। बोले वो तुम्हारे पैर नहीं थे, मेरे पैर थे, मैंने तुम्हें उठाया हुआ। तो एतबार बहुत जरूरी है, एतबार बहुत जरूरी है। तो देखा नहीं पलट के तेरे एतबार में चलते चलते, और गुजर गया हर लम्हा तेरे इंतजार में टलते टलते। तो आई थिंक such a deep meaning. Wow, this is beautiful, seriously. थैंक यू। तो ये आपने ये स्टोरी से थोड़ा प्रेरित होके लिखा है? हाँ, यू नीड ए रीजन, कवि को कविता बनाने के लिए कविता की जरूरत पड़ती है। यू नीड टू हैव सम इंस्पिरेशन इन लाइफ। मेरी भी हिंदी बेटर हो रही है धीरे धीरे, मैं भी कुछ नहीं। और इसी निशान पे मुझे याद आए, जो रेत के ऊपर जो निशान है, जो फुटप्रिंट जो हम कहते हैं, तो उसपे कोई थॉट था, उसपे मैंने एक पोएट्री बना दी थी कि कौन जाने ये निशान हमें किधर ले जाएं। आप कहते हैं कि फॉलो ए ट्रेल, कि अगर पहले से रास्ता बना हो उसको फॉलो कर लीजिए। तो मैंने कहा कौन जाने ये निशान हमें किधर ले जाएं, चलो हम ही कदमों के निशान छोड़ जाएं। यानी why not you find your own path and lead others. This is my job. This is what I do. So मुझे लगा amazing, this is amazing, seriously. No, seriously, because actually you are leading by example. मैंने ऐसे नहीं देखा है कि आप कोई इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, comes live and I don't have to keep telling you, that's the best part. Everybody is listening and it is so easy. Just tell him and he'll be like, okay, I'll be free and I'm more than happy to help people. So it's just amazing, I don't know, I have not approached anyone else, but yes, you are just amazing. And last time also people were so happy knowing because आपने बिल्कुल सब कुछ as usual सही बोला। तो मुझे तो इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं पहले से सॉरी बोल देती हूँ क्योंकि सबको तो मैं I can't take the thank you, Saloni. God has been kind, and I feel I have a responsibility towards everyone. Yeah, this is my profession, but at the same time, whenever I get opportunity, though, of course I can do this way. There's no problem in that.
Yes, and you are getting blessings, I'm sure. I mean, they all so happy and they all keep praising you. So I'm थैंक so यू. glad. नो, आई Okay, बिलीव इन one दैट. more thing and then we start with the questions because जी. फिर बहुत सारे लोग हैं. One more thing. अच्छा, जैसे कि अभी आप सिचुएशन है, आपने देखा ही है सुशांत सिंह राजपूत का. he he's of course he killed himself and ऐसा कुछ हो सकता है कि मतलब the state of mind जैसे इस स्टेट ऑफ माइंड में है या ऑफ कोर्स हॉरोस्कोप में भी कुछ ऐसा होगा टाइम की जिसमें ऐसा कुछ कर सकते हैं. ऐसा कुछ होता है कि यार हॉरोस्कोप में इतना टाइम है, इतने में से इतना इट इज पॉसिबल दैट पीपल माइट टेक देयर ओन लाइफ और समथिंग लाइक दैट होता है हॉरोस्कोप में? बिल्कुल होता है सलोनी. दैट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट एंड आई ऑलवेज फील बैड. कभी भी मुझे ऐसा यस. कोई दुर्घटना का पता चलता है दैट समबडी हैज कमिटेड ए सुसाइड, तो मैं बार बार मन में सोचता हूँ कि काश मुझे मौका मिलता उससे बात करने का. काश मैं जी उसका जी हॉरोस्कोप देख पाता, उसको बिल्कुल. बताता कि भाई ये जो सिचुएशन है ये खाली ये एक फेज है, और आगे आपका जो वक्त आने वाला है वो बहुत बेहतर है और थिंग्स विल चेंज. लेकिन आपको आगे वाले आने का वक्त पता नहीं और आप इतने कमजोर हो जाते हैं, जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो जी वक्त इतना खराब है जो आपको इतना डिप्रेस कर देता है दैट यू लूज ऑल द होप. एंड कितनी बार मैंने देखा है कि कि जब वक्त बुरा होता है तो कोई भी साथ नहीं देता है. तो या तो किसी मजबूरी में वो लोग फंस जाते हैं, जैसे उनका स्टोरी में यही था कि he tried to call one of his friend कौन? one night करेक्ट. earlier and another two friends actually, and both of them they didn't take the call. फोन ही नहीं उठाया. यस. तो काश अगर कोई जी उनसे बात करता है, he would have expressed कि भाई बिल्कुल. ये सिचुएशन है, तो थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है. इसीलिए कहते हैं जी कि बिल्कुल. खुशी बांटने से बढ़ जाती है और दुख बांटने से कम हो जाता है. तो ये बहुत जरूरी है अपनी इमोशन को शेयर करना. तो एस्ट्रोलॉजी जब भी करेक्ट. मैं किसी का हॉरोस्कोप देखता हूँ उसको बताता हूँ कि भाई ये टाइम उनका चल रहा है या उनके फैमिली वाले हैं तो उनको बताता हूँ कि भाई ये इसका टाइम ठीक नहीं है, तो यू हैव टू गिव क्वालिटी टाइम. हंसी मजाक करिए, एक माहौल अच्छा बनाइए एंड ये खाली 6 महीने की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा. तो एक होप मिल जाती है यस. एस्ट्रोलॉजी से. एक आपको आगे का करेक्ट. रास्ता दिख जाता है कि इट इज नॉट एंड ऑफ द नहीं. स्टोरी. ये आपका पैकअप करेक्ट. नहीं हुआ है. इट इज जस्ट ए सिचुएशन, दैट इज द रीजन दिस वर्ल्ड हैज बिकम योर एनिमी. तो वन साइड इज दे पीपल विल स्टार्ट. मैं ये कह रहा था कि सलोनी की या तो लोग आपके साथ ऐसा बर्ताव करना शुरू कर देते हैं. दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आपको लगने लगता है कि लोग लगने सारे के लगता है. सारे आपके दुश्मन बन चुके हैं. तो ये दोनों साइड हैं करेक्ट. इसके, एक ही साइड उसके. तो बिकॉज बिल्कुल. स्टेट ऑफ माइंड इतना नेगेटिव हो जाता है. तो स्टेट यहाँ ऑफ पे माइंड. अगर कोई यस. आपका वेल विशर, आपका दोस्त, एस्ट्रोलॉजर से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, जो आपके जी दिल की बात कर जी सकता है, जो और आपको जी जी. क्योंकि सुन तो लिया आपने, उसका रास्ता क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, कि हाउ वो टाइम कब तक है ये कौन बताएगा. तो एक बिल्कुल एस्ट्रोलॉजर आपको बिल्कुल. बता सकता है. तो दैट इज द रीजन एस्ट्रोलॉजर हैज ए वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एवरीवन. एंड जब ये ऐसे करेक्ट. मौके आते हैं, ऐसे वीक मोमेंट्स आते हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि भाई नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ. अगर आपको ऊपर वाले पे यकीन है तो ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए. गिव योर बेस्ट एंड लीव हिम द रेस्ट. तो ये अगर हम अपने अंदर ये एक सिस्टम बना लें, एक आदत डाल लें कि ऊपर वाला है और कुछ भी परमानेंट बिल्कुल. नहीं है, ये दुनिया में हर चीज परिवर्तित है, जो चेंज होती रहती है वक्त के साथ. तो कहना आसान है, आई नो दैट, बट अगर ये हम आदत डाल लेते हैं तो देन यू कैन पास दैट इन द फेज. बैक ऑफ माइंड, इन द बैक ऑफ योर माइंड इट स्टेज देयर. कुछ भी हो एब्सोल्युटली. जाए वो रहता है दिमाग में. अच्छा, पर ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है जैसे मेडिटेशन तो एक चीज है विच लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग एंड इट इज दे आर डूइंग और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट जैसे जी. कोई डिप्रेशन में है, आई एम श्योर कोई मेडिटेशन कर रहा है वो तो डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता है. बट अगर जैसे कोई है जा रहा है डिप्रेशन में एंड पीपल अराउंड that person is able to understand or that person himself is able to understand कि हाँ मुझे कुछ तो है problem. So is there anything spiritually that person can do or any mantra he should or she should chant कि that urja comes and then you feel better about yourself and get over this depression? देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट इसमें सलोनी ये है कि पहले आपको रियलाइजेशन होना चाहिए कि यस समथिंग इज रॉन्ग. होता क्या है कि जी. अभी जो मेंटल हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, मेंटल इलनेस की बात कर रहे हैं, वो पहले कोई बात नहीं करता था. जैसे ही किसी को बताया कि भाई इनको तो अभी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा, तो मोमेंट ये यू से इट, स्पेशली इंडिया की बात कर रहा हूँ. इंडिया में अब ये पहली Correct. बार Correct. दीपिका पादुकोण स्टार्टेड फर्स्ट टाइम टू शी जी. केम अप ओपनली. तो वो लगता है कि क्या मैं पागल हूँ क्या, मुझे वहां ले जा रहे हैं. Correct. तो वो People don't परसेप्शन था. take it in the right way. यस. तो जैसे हमारी बाकी एलिमेंट्स हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं कि भाई इसको ये हो गया है, इसको ये हो गया है, ऐसी ऐसी मेंटल हेल्थ इज इक्वली नॉर्मल एंड इक्वली अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर एंड लाइफ. तो यहाँ पे पहली बात है रियलाइजेशन होना चाहिए कि इट इज जस्ट सम काइंड ऑफ सिकनेस इन मी विच इज एम्परिंग माई स्टेट ऑफ माइंड. तो इट इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडीली डिसऑर्डर.
दूसरी बात है, पहले तो रियलाइजेशन, दूसरी बात है कि उसको ओपन होना चाहिए, यू नो, टू ब्रिंग दोज चेंजेस, एंड चाहे वो मेडिकेशन हो या डॉक्टर्स हो या आपके आसपास के लोग हैं, और उनका बहुत बड़ा फर्ज है कि आप घर में एक ह्यूमर क्रिएट करिए, उसको ऑप्टिमिज्म की बातें करिए, बिना रियलाइज कराए कि दे आर डूइंग इट डेलिबरेटली। नहीं, या यू नो, क्योंकि कई बार करेक्ट, होता है, अच्छा ये मेरे लिए कर रहा हूँ, चल यार ये चल ये देख लेते हैं या वो कर लेते हैं, तेरा मन चेंज हो जाएगा, उसको रियलाइज मत कराइए कि आई एम डूइंग इट फॉर यू, यू क्रिएट यस इट। करेक्ट, यू नो, कुछ भी हंसी मजाक करो, फनी चीज करो, इलॉजिकल चीजें करो, व्हाटएवर just to पॉसिबल। yes, and keep on talking, you know, and keep having that connection with that person. तो ये अगर इस तरह की कुछ चीजें हम लोग करते हैं, बट पता नहीं होता है एक्चुअली, बहुत बार क्या होता है कि किसी का टाइम खराब है, मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल एग्जांपल दे देता हूँ। अब उसको नहीं पता, वो पर्सन रिएक्ट कर रहा है, वो अपनी वाइफ से झगड़ा कर रहा है, वो अपने मदर जी फादर से झगड़ा कर रहा है, वो कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा है, बच्चों 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 को भी डांट रहा है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो डिस्टेंस बना लेंगे। उनको नहीं करेक्ट पता कि करेक्ट, वो डिप्रेस्ड है, उनको लगे यार ये बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं, एंड ही बहुत डजंट गुस्सा वैल्यू मी, वाला हो यू गया है। नो। हाँ, तो उनको ये नहीं पता कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही, तो वो इंसान खुद जी को पहले जोन में भेज देता है, अलूफ हो जाता है। तो ऐसे में बुरा मानने के बजाय ये समझना चाहिए कि कुछ बिहेवियर चेंजेस हुआ है, इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द पर्सन, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, नेगेटिव अराउंड हिम। तो आपका फर्ज बन जाता है कि आप उसको बुरा माने बगैर आप अपना टाइम और अपना एनर्जी और अपना ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी उसको दीजिए, सो दैट द पर्सन कैन फील दैट। और एक दोस्ती, करेक्ट, एक प्यार, एक मोहब्बत से कुछ भी बदला जा सकता है, मुझे इसमें पूरा यकीन है। बिल्कुल, जी जी। बिल्कुल। चलो ठीक है, फॉर ऑन दैट नोट वील जस्ट स्टार्ट आज आपने क्वेश्चंस। बहुत ही भारी भरकम सवाल और बहुत सीरियस क्वेश्चन किए हैं, चलिए, बट आई अप्रिशिएट, जी बिकॉज एवरीवन डिजर्व टू नो दैट, बिकॉज ये दुनिया थोड़ी सी मुश्किल में हो गई, एंड जी, इट इज इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट फेस। मैंने इसीलिए भी पूछा बिकॉज देयर आर पीपल यू नो दे जस्ट थिंक टू मच एंड उसकी वजह से दे गेट इनटू दिस स्टेट ऑफ माइंड यस कि यस मुझे यस। सपना भी मैंने इसीलिए पूछा और नजर भी मैंने इसीलिए पूछा बिकॉज यू नो दे हैव दैट सपना आ गया तो अरे यू नो आई हैव सीन दिस ड्रीम, कहीं मेरे साथ ऐसा तो नहीं होने वाला है या कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला है। और नजर भी यू नो पीपल जब कुछ गलत चल रहा होता है लाइफ में तो किसी ने कुछ कर दिया है या स्टफ लाइक दैट दे स्टार्ट यू नो थिंकिंग दैट वे, सो आई जस्ट थॉट यू इसलिए, नो या फिर so हाँ, that आपने सही people पूछा है। फिर लोग क्या करते हैं, फिर लोग रेमेडीज की तरफ चले जाते हैं, कोई नेम की स्पेलिंग जी बदल के बैठ जाता है, कोई कहता है मेरा घर ही ठीक नहीं है, वो अपना घर बदल के बैठ गया अननेसेसरी कि इसका वास्तु ठीक नहीं है। करेक्ट, और कोई फिर हाँ हाँ तरह आई तरह के एग्री, टोटके करके बैठ गया जिसका कोई लॉजिक नहीं है। तो फिर लोग अपने अननेसेसरी अपने पैसे भी वेस्ट करते हैं, एनर्जी भी वेस्ट करते हैं, उनको ये नहीं पता है कि टाइम, जान लीजिए कि टाइम ठीक नहीं है, बाकी सब ठीक था, आपने अच्छा भी यही बिल्कुल किया, इसी नाम की स्पेलिंग से, इसी घर में रहते हुए, खाली टाइम बदला है, वो टाइम जानना चाहिए कि कब तक बदल जाएगा, तो देन यू विल बी ऑल सेट। करेक्ट। ओके, सो फर्स्ट इज तनीषा, तनीषा गर्ग, डेट ऑफ बर्थ, अरे चला गया, डेट ऑफ बर्थ दैट्स इज कॉल्ड फर्स्ट 4/2002। 1 अप्रैल। हाँ जी, 2002, टाइम इज 5:10 AM, AM, ओके। प्लेस इज गर्थ मुक्तेश्वर, हापुड़। Want to ask ये about career. She wants to गढ़ ask about मुक्तेश्वर, career. गढ़ मुक्तेश्वर से हापुड़, बहुत सारे लोग आते हैं, मालूम है आपको, पता नहीं क्यों। जी अच्छा हाँ, वेरी गुड, बट आई थिंक दे आर वेरी विजिलेंट। तो 1 अप्रैल 2002, दैट मीन्स 18 ईयर्स ओल्ड हैं ये तनीषा। जी और जी, तनीषा के अंदर अच्छी क्वालिटीज भी हैं, बिकॉज शी इज वेरी काइंड हार्टेड, वेरी केयरिंग एंड लविंग, एंड उनका बचपन के सपना है कि मुझे एक दिन दुनिया के लिए भी कुछ करना चाहिए। अगर ये सुन रही हैं तो उनको बोलिए यहाँ पे लिखें। तो जी ये शी तनिषा, are ट्राई you टू, listening? और Please लेकिन जो इनका, mention. ये इनका जो सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट है सलोनी, वो यही है कि इनको छोटी छोटी बातों में ये हर्ट हो जाते हैं। हर मून साइन इज स्कॉर्पियो, नीच का चंद्रमा है, तो कोई भी चीज इनको बॉदर कर जाती है, कोई भी चीज। तो उसने कहा कुछ और, लगा कुछ और, मजाक किया बोले मजाक उड़ाया, ऐसे करके उनका मन में ख्याल आता Okay. है। एंड बट शी इज वाइज, शी इज ब्लेस्ड, एंड शी हैज लॉट ऑफ कैलिबर टू डू गुड। क्रिएटिव भी हैं, अथॉरिटेटिव भी हैं, एम्बिशियस बहुत हैं, इंट्यूटिव भी हैं, तो लेकिन ये जो एक वीक पॉइंट है इनका, एक डाउट होना, रेस्टलेस हो जाना और छोटी छोटी बातों पे अटक जाना, ये इनका वीक पॉइंट है। लेकिन अच्छी बात क्या है यहाँ पे सलोनी, कि इनकी जिंदगी बदलने वाली है। 3 जून से, अच्छा, एक महीना से इनका okay, ट्रांजिशन का दौर शुरू हो चुका है, एंड बिफोर 2022 एवरीथिंग विल चेंज इन हर लाइफ, एंड शी इज हेडिंग okay. फॉर अनदर अनदर बिगनिंग। तो मुझे लगता है, Oh मुझे नहीं wow. पता ये क्या प्लान कर रही हैं, इंडिया के बाहर जाना चाहती हैं आने वाले 2 साल के अंदर, या क्या करना चाहती हैं, आई डोंट नो इफ शी हैज रिटन ए क्वेश्चन हियर।
क्वेश्चन तो मैं नहीं लिखा ना उन्होंने। क्वेश्चन नहीं, बस करियर के बारे में ही पूछा है. आई तो थिंक शी करियर वांट्स टू में, गेट इनटू मूवीज और समथिंग लाइक दैट. लास्ट टाइम आल्सो शी इज मेंशन्ड, आई गेस. मूवीज के लिए तो मैं इनको यही कहूंगा तनिषा, कि अपने आप को बदलना पड़ेगा, बिकॉज मूवीज जो हमारी इंडस्ट्री है, आप देख रही हैं आजकल क्या क्या चीजें चल रही हैं यहाँ जी पर। जी जी जी. एक दूसरे का ब्लेम गेम चल रहा है, नेपोटिज्म की बात हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आसान नहीं है। तो यहाँ पे हैंडल करना उन सब चीजों के लिए आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो यू नीड टू फर्स्ट बिकम अ स्ट्रांग पर्सन हु कैन हैंडल एनीथिंग लाइक दैट। और जब आप ऐसा कर लेंगी देन यू यू विल बी ऑल गुड। अदरवाइज यहाँ पे स्ट्रगल बढ़ जाता है अगर आप अगर स्ट्रांग पर्सन नहीं है तो, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव है, इनको डाउट भी हो जाता है हर चीज पे, ये दूसरा वीक पॉइंट इनका। तो मेरे ख्याल से अगर ये अच्छा. दो चीजों पे काम कर लेती हैं तो देन इट विल बी ऑल गुड। ओके. सो मेजर चेंज आने नेक्स्ट वाला है इज करियर वाइज, तो शी माइट चेंज ओके. हर स्टेट, सिटी और कंट्री इवन इन द कमिंग 2 years। ओके. ऑलराइट. सो नेक्स्ट इज ग्लैम गर्ल प्रियंका. 11th June हम्म 1981, Priyanka Mehra, Mumbai, हम्म। and she wants to ask about career. नहीं, टाइम Time, बताया था। Priyanka, time. I think I have last time also she was there. Okay, yeah. 2:30 a.m. 2:30 a.m. Priyanka. 11th June 1981. ओके। एंड 2:30 वो क्या, a.m. Mumbai. हाँ, टू Mumbai. 2:35 She लिख wants रही to हैं अभी। 2:35 लिख हाँ रही है. हाँ, अभी आई मुझे जस्ट तो सीन दैट। अच्छा. तो 11 June 81, थर्सडे 2:35 इन द मॉर्निंग, मुंबई। ओके. तो ओके. तो कुछ क्वेश्चन लिखा था इन्होंने। करियर के लिए she wants to ask about career. देखिए, करियर का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा उसको आता है जो मल्टी टैलेंटेड होता है, एंड शी इज वन ऑफ देम। She Okay. has lot of sides to her. She is quite courageous. She believe in Okay. initiative and very very creative. Obviously she get the best. Lucky हैं कि इनको सब कुछ मिल जाता है आसानी से, जो ब्यूटीफुल है वो Okay. इनको आसानी से मिल जाता है, luxuries, a good house अच्छा. to live in, everything. Okay. So that is a good thing about her. Very particular about her public image, and whatever she will do it in a very beautiful and creative manner throughout her life. तो जुपिटर Okay. की दशा इनकी चल रही है, विच इज हर असेंडेंट लॉर्ड, इज सपोज टू बी गुड वन, बट थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है क्योंकि जुपिटर एंड Okay. मर्क्यूरी आर नॉट फ्रेंडली टू ईच अदर, सो शी माइट नॉट बी हैप्पी और एंजॉयिंग समथिंग, जबकि सब ठीक भी है फिर भी ठीक नहीं। तो अच्छा. ये वो कुछ लोग satisfaction होते नहीं हैं, है. हाँ, कुछ लोग होते हैं जो डिससेटिस्फाइड रहते हैं, इनका वही सिचुएशन चल रहा है। अदरवाइज इनको पर्ल और येलो सफारी सूट करता है, शी शुड वियर Okay. दैट, बट मोर Okay. इम्पोर्टेंटली शी शुड डू हर डेली प्रेयर्स एंड सम मेडिटेशन, बिकॉज ये कभी Okay. कभी खुद अपने जोन में चली जाती हैं अगर इनके हिसाब से चीजें नहीं होती हैं तो ये इनका वीक पॉइंट है, Okay. इनको उस पर काम करना चाहिए। Okay. All right. जी। Uh, Next is Vishal Digani, हम्म 6/6/1983, 6 June, and 1983। 3:58, 1983, 3:58 a.m. Delhi. ये सब सुबह सुबह के सारे क्वेश्चन ले रही हैं आप, अर्ली मॉर्निंग। तो अभी जो नेक्स्ट नेक्स्ट मुझे दिख रहा है 6 जून नेक्स्ट 9 नहीं, नेक्स्ट बाई देखते चांस। जा रहा है. हाँ, 6 जून 1983, मंडे था उस दिन, 3:58 इन द मॉर्निंग एंड मुंबई। 58. इनका Yes. कोई क्वेश्चन था क्या? नहीं, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, इट्स अच्छा, दिल्ली सॉरी, वन सेकंड। दिल्ली. कोई क्वेश्चन है विशाल आपका तो बोलिए प्लीज. देखिए, विशाल जो है वो, इनके अंदर बहुत सी काबिलियत है, बहुत समझदार हैं, वाइज हैं, कुछ भी डिटेल में सीख लेंगे, कुछ भी पढ़ लेंगे, एस्ट्रोलॉजी भी सीखने में इंटरेस्ट होगा वो भी पढ़ सकते हैं, ये सीख सकते हैं ये। अच्छा. एंड और ये इनको बचपन से गलतफहमी है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, ही बिलीव्स इन टेकिंग इनिशिएटिव। कुछ भी आप इनको बोल के देखिए कि अच्छा. विशाल तुमसे नहीं हो पाएगा, तो बोलेंगे नहीं नहीं, मैं करके दिखाता हूँ। तो ये उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। एंड अगर टाइम ठीक है तो सक्सेस मिल जाता है, नहीं टाइम ठीक है तो इंसान फ्रस्ट्रेट होता है। लेकिन अभी मेरे हिसाब से ठीक. इनका टाइम ठीक है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज फ्रॉम जनवरी, एंड इट विल बी अ गुड ओके. फेज फॉर हिम। काबिलियत बहुत है, ओके. और मुझे नहीं पता इनके सपने कितने बड़े हैं, बट मुझे लगता है कि ही हैज अ पोटेंशियल टू डू समथिंग बिग इन लाइफ। कोई पर्टिकुलर ओके. क्वेश्चन नहीं पूछा ग्रेट. था इन्होंने? मैंने वही लिखा तो है. हम्म। आई थिंक करियर एंड आई थिंक शादी. देखिए, अगर ये इस हॉरोस्कोप में खाली एक पॉइंट ये जरूर है कि ये इतने डेयरिंग हैं, तो कभी कभी जब इंसान ओवरबोर्ड हो जाता है ना, समझा रहे हैं लोग विशाल भाई मत करो, अभी मौसम ठीक नहीं है, अभी हम्म. ये वक्त ठीक नहीं है, बट ये सुनते नहीं है। और ये
ओवरबोर्ड चले जाते हैं, कभी लोन लेके मैं ये कर दूंगा और वो करके मैं वो कर लूंगा, तो उसमें फंस जाने के चांसेस भी रहते हैं ऐसे लोगों को। तो ये मैं जरूर इनसे कहना चाहता हूँ कि भाई साहब थोड़ा सा, इंग्लिश का वर्ड है कि कंट्रोल योर हॉर्सेस, तो ये इनको थोड़ा सा एक करना चाहिए। ये भी करना है, वो भी करना है, सब करना है। हाँ करेक्ट, सितंबर से इनका एक बेटर फेज शुरू हो जाएगा। और अगर ये शादी अच्छा। करना चाहते हैं तो नवंबर से इनकी शादी का टाइम भी चल रहा है। तो ऑलरेडी या तो इनका एक रिलेशनशिप है या इन्होंने एक ब्रेक कर दिया, और वो बहुत मुश्किल अच्छा। से ब्रेक हुआ होगा जी। तो विशाल, और शादी करना चाहते हो तो नवंबर ये साल से नवंबर अगले साल के बीच में आपकी शादी के पूरे पूरे स्कोप है। लेकिन भाई ये जिंदगी की जो दौड़ है वो मैराथन है, मैराथन 100 मीटर नहीं है। तो थोड़ा सा आपको ठहराव के साथ, प्लानिंग के साथ अगर आप चलोगे तो नहीं फंसोगे, ये मैं एडवाइस आपको जरूर देना चाहता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट इज 5:02 PM 15 नहीं नहीं, आप नवंबर ऐसे मत, पहले 2013। पहले डेट ऑफ बर्थ, फिर टाइम ऑफ बर्थ, फिर प्लेस ऑफ बर्थ। अच्छा, जी ठीक है। तो 15 नवंबर 2013, जी 5:02 PM, अभी मैंने ओके शाम का जी। मुंबई, मुंबई। तो क्या जानना चाहते हैं? जनरल, आई थिंक तो छोटा सा बच्चा ही है। हाँ तो 17 ईयर्स है, 17 ही भी सेड, कंप्लीट नहीं हुआ अभी। नहीं नहीं, 2013, इट्स हाँ 2013। 7 ईयर्स, अरे तो ये इनकी मदर पूछ रहे होंगे, इसका 6.5 हुए तो जी भी। जी जी हाँ हाँ जी हाँ जी। ओ, तो क्वेश्चन करना चाहिए था। वैसे मैं इनकी मदर को ये जरूर कहूंगा कि देखिए, आपको, आपका बच्चा बहुत शरारती है ऐसा आपको लगता होगा, और किसी की नहीं सुनता ये भी आपको लगता होगा, और गुस्सा भी आता होगा ये भी लगता होगा। लेकिन यहाँ पे उसके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज भी हैं। पहली बात है कि उसका वक्त शुक्र की दशा है। तो ऐसे में बचपन में जब शुक्र की दशा आती है तो फोकस नहीं रहता है, द पर्सन में टेक इंटरेस्ट इन लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये म्यूजिक, पेंटिंग, अभी तो कंप्यूटर गेम्स हैं, तो आपको बार बार यही शिकायत रहेगी कि ये पढ़ता नहीं है, जबकि ये छोटा सा बच्चा है। लेकिन मैं ये बता दूं, इसको आप डांटिए मत, इसको प्रेशर मत डालिए, बिकॉज जितना आप उसको प्यार से समझा लेंगी उतना वो आपके हिसाब से चलने लगेगा। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि वो समझदार बच्चा है। लेकिन उसको जिद, उसकी एक प्रॉब्लम है छोटी छोटी बातों में अटक जाना और रिएक्ट करना। तो अगर आप उसकी दोस्त बन के उसको हैंडल कर रही हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप उसकी टीचर बनी हुई हैं तो फिर मुश्किल है, फिर आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे और फिर आपकी बातों का असर भी खत्म हो जाएगा। तो ये आपकी एडवाइस मैं देना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि शायद उनकी मदर है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और अगर आप उनके जी। फादर ने ये मैसेज किया है तो फिर मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी वाइफ को समझाइएगा कि इनको हैंडल करने का तरीका अलग अच्छा, ठीक है। है तो जी। मतलब प्यार से समझाया जाए बच्चों को, वैसे सारे बच्चों को प्यार से ही समझाना चाहिए। एक और बच्चे का है मेरे पास, जी तो आई जस्ट क्विकली टेल दैट ऑल्सो। 29 अगस्त 2016, 29 अगस्त 2016, 2000। जी छोटू बच्चा है, बट इसका क्वेश्चन है 12:14 PM हम्म। मुंबई, मुंबई। सो आई थिंक दे सेइंग ये डबल मांगलिक है, तो इज इट ट्रू या क्या है? अच्छा सवाल है। देखिए ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है। डबल है, मेरा तो बहुत ये हल्का मुझे समझ मंगल नहीं है, आता एक्चुअली। हाँ, मेरा बहुत करेक्ट। भारी भारी मंगल है, ये सब गलत टर्मिनोलॉजी है, ये एस्ट्रोलॉजी के पार्ट नहीं है। ये डबल सब मांगलिक जी। ज्योतिषियों ने अपनी वोकेबुलरी शायद बना रखी है। देखिए डबल और जी, हाफ और क्वार्टर नहीं होता है, या तो मंगलिक होता है या नहीं होता है, नहीं इसमें बीच होता। में कुछ कुछ नहीं होता। तो ये बच्चा इनका मांगलिक है, जी अगर टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट है तो। और मांगलिक जी। बच्चा है, लेकिन ये मांगलिक को देखने के लिए खाली एट द टाइम ऑफ बर्थ, ओके सॉरी एट द टाइम ऑफ मैरिज में ही देखा जाता है, नॉट बिफोर दैट और अच्छा। आफ्टर दैट। तो खाली ओके यही है कि मांगलिक के वक्त कुंडली मिला के मांगलिक से शादी होनी चाहिए, दैट इज ओनली इंटरप्रिटेशन विच ही हैज। हाँ ये जरूर है, लगन में मंगल वाला ओके। थोड़ा सा एग्रेसिव जरूर होता है, तो बच्चे को आपको बहुत प्यार से हैंडल करना चाहिए। और लोग शिकायत कर रहे हैं कि आप छोटे छोटे बच्चों का ले रही हो, हम लोग बैठे हुए हैं कि हमारी शादी कब होगी और बच्चे कब होंगे छोटे छोटे, उनके बारे में बता नहीं रही ओके। तो ठीक है, ये मंगल का हो गया। एंड एनीथिंग एल्स अबाउट दिस किड? दैट्स इट? बाकी हाउ गुड इज ही चाइल्ड एक्चुअली, अदरवाइज बहुत लाइफ? गुड। नहीं नहीं, बहुत इसको बहुत भी काबिलियत प्यार है से उसके अंदर। समझ। खाली अच्छा। हाँ प्यार से, क्योंकि ऐसे लोगों को जल्दी प्रोवोक किया जा सकता है, लगन में मंगल वाले जल्दी प्रोवोक हो अच्छा, जाते हैं, ओके। फिर वो रिएक्ट करते तो हैं, लगता एनी, है बहुत। तो पड़ोसी वाले कहेंगे अरे शर्मा जी आपका बेटा तो बहुत बदतमीज है, हमें तो कुछ भी ऐसे बोल देता है। वो बदतमीज नहीं है, ही इज अ वेरी स्ट्रेट डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। तो वो उसको ओके रिएक्ट करने की टेंडेंसी होती है, डायरेक्ट बोल देता है। तो जी। उसमें कहीं समझदार बच्चा है, लेकिन उसका स्पीच और उसका एनर्जी लेवल ऐसा रहेगा जो हमेशा डोमिनेटिंग डोमिनेटिंग रहेगा या थोड़ा सा एग्रेसिव रहेगा, दैट्स द ओनली थिंग। बट ओके एज के साथ साथ द पर्सन कैन ग्रो एंड अंडरस्टैंड। ओके।
So जी next is Chanchal Avasthi. Date of birth is 10th July 1985. 10th July 1985. 1985, 1:30 p.m. Place of birth? Bhopal. Bhopal. I have marital issues and not able to get back to work for, for 2 years after a break. Also, if business or job, what is better for me? 10 जुलाई 85 को वेनसडे था 1:30 PM। देखिए इनका बहुत ही नेगेटिव टाइम चल रहा है और ये भी 24 जुलाई यानी ये महीने के एंड तक है और उसके बाद चीजें बदलेंगी और फिर इस जुलाई से अगले जुलाई के बीच में सब कुछ बदल जाने वाला है। बिजनेस के लिए मैं आपको सपोर्ट सजेस्ट नहीं करूंगा, इधर यू बिकम ए कंसल्टेंट और किसी चीज की ट्रेडिंग कर लीजिए शेयर मार्केट को छोड़ के, तो वो आपको सूट जरूर करता है। अदरवाइज जॉब कैन बी ए गुड ऑप्शन, क्योंकि चंद्रमा की दशा शुरू होगी, चंद्रमा 6 हाउस में प्लेस्ड है, तो या तो कॉन्ट्रेक्चुअल कुछ चीजें कहिए वेर यू आर आंसरेबल टू समथिंग विच विल हेल्प यू एंड अदरवाइज दिल के साफ इंसान है, बुरा मान जाते हैं तो ये अपनी शेल में चले जाते हैं। वृंदावन और हरिद्वार जा रहा हूँ मैं, पता नहीं कब लौटूंगा, मतलब खुद ही अपने जोन में जाने की टेंडेंसी रहती है। तो ये इनको थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी जो है मिडिल पाथ इज ऑलवेज राइट पाथ। बाकी अच्छे हैं, दिल के बहुत साफ हैं, लेकिन जब वक्त ठीक नहीं होता है तो कोई भी साथ नहीं देता है। इसमें मैंने लिखा था बहुत टाइम पहले, कई बार सुनाया मैंने कि वक्त के साथ जब हालात बदल जाते हैं, जो इनकी कहानी चंचल जी की, कि वक्त के साथ जब हालात बदल जाते हैं तो कभी लोग तो कभी जज्बात बदल जाते हैं, तो इट इज ऑल अबाउट टाइम। जी Okay. So next is हाँ, 11th इनका सवाल December का जवाब 9. यही है जो मैंने बताया कि जुलाई के ऑनवर्ड, 24 जुलाई ऑनवर्ड, तो आज से जुलाई शुरू हो चुका है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही माइट गेट ए जॉब एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ही माइट गेट अनदर पोर्टफोलियो या अनदर Okay. लाइन Something ऑफ वर्क, better for him. समथिंग न्यू आल्सो जो इन्होंने पहले नहीं किया, Okay. तो ही नीड टू Okay. कीप So हिज ऑप्शंस ओपन एवरी डे। open. जी Okay. So he should go ahead with whatever is coming डेफिनेटली on his way. Okay. जी। So next is 11th December 1982, 1:42 p.m. जी Mumbai. प्लीज। Mumbai. 11 दिसंबर 1982 सैटरडे था, 11:42 सॉरी 1:42 PM राइट, 1:42। 1:42 p.m. Mumbai. इनका लास्ट ईयर बहुत ही बैड था। अक्टूबर मई 2018 से मई 2019 वाज क्वाइट अ फ्रस्ट्रेटिंग ईयर फॉर हिम और हर, आई डोंट नो, नाम नहीं बताया शायद। Him. बट बहुत समझदार इंसान है। इनके फादर भी बहुत वाइज एंड यू नो पीपल लुक अप टू हिम फॉर गाइडेंस, उस तरह के इंसान है। इनका 2-3 प्रॉब्लम है। एक तो ये एनालाइज चीजों को बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। वो जरूरत नहीं है हर चीज को ऐसा और वैसा। दूसरा इनका प्रॉब्लम है कि इनको हर चीज पे फिर ये एक फियर ऑफ अननोन इनका एक प्रॉब्लम है। और तीसरा कि खुद के शेल में जाने की टेंडेंसी हमेशा रहती है, छोटी छोटी बातों को ना इग्नोर कर पाना, बिकॉज ऑफ एनालाइजिंग एवरी टाइम, फीलिंग बैड अबाउट इट एंड देन कंप्लेनिंग एंड सल्किंग। तो अच्छी खासी जिंदगी को मुश्किल में डालने की कोशिश हमेशा ये करते रहते हैं इमोशंस की वजह से। सो ही नीड टू ओवरकम दैट। देखिए कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। इनकी ये 2 वीक पॉइंट है, 3 है, और तीनों इंटर रिलेटेड। तो मुझे लगता है कि लेट गो करना चाहिए, बड़ी बड़ी बातों में नहीं। कभी कभी जिंदगी में बड़ी बातें भी इग्नोर करनी पड़ती हैं टू बी इन हैप्पी स्टेट। तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज ये हर छोटी बात पकड़ लेते हैं और फिर उस पर या तो रिएक्ट करेंगे या फिर खुद ही बुरा मान जाएंगे। तो फिर कहाँ रिलेशन चलेंगे। और फिर इनका प्राइड का प्रॉब्लम है, यू नो, कि सेल्फ रिस्पेक्ट, ही विल ऑलवेज क्लेम डिग्निटी इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो वो उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, उसका ये ठीक नहीं है, उसका वो ठीक नहीं है, तो हर चीज को ये अपने ईगो पे ले लेते हैं। तो उसके वजह से प्रॉब्लम हमेशा आती रहती है। तो भाई साहब थोड़ा सा बदल जाइए। अभी 38th ईयर इनका चल रहा है, तो आई थिंक ही नीड टू चेंज दैट। और जो बहुत ही डिफिकल्ट दौर था वो निकल चुका है। ये साल में जरूर कहूंगा, ये तो नहीं है, अगले 3 साल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक इट इज अ गुड फेज विच ही हैज स्टार्टेड। Okay. So no worries. He need to just forget So it is things going of to the be past. a good phase for him now from Yes. next year. Yes, he can Okay. wear a yellow sapphire. So- पुखराज पहन ले, वो उनके लिए अच्छा है। Okay. जी। बाकी गुस्सा एंड इमोशनल emotions इम्बैलेंस वगैरह control देखिए, करें। हाँ वो है प्रॉब्लम, क्योंकि सेंसिटिव इंसान है और फिर ईगो भी अच्छा। हर्ट हो जाता है। तो आप ऐसे लोगों को बहुत जी। जल्दी प्रोवोक कर सकते हैं, बहुत जल्दी। Okay. तो लाइफ में Okay. खुश रहने के लिए इग्नोरेंस इज ब्लिस, You have यही to कहा let जाता go. है। जी, लेट गो इज द ठीक राइट है। वर्ड। Okay, next is Raj Goswami. जी 7/12/1985, टाइम बताइए 8:25 a.m. प्लीज। मुंबई, महाराष्ट्र। 7 दिसंबर 85 को सैटरडे था,
and 8:25 in the morning. He wants to know when he'll get married. Marriage कब होगा? देखिए, इनका इंडिया के बाहर जाने का भी स्कोप बहुत स्ट्रांग था, गए थे कि जाने वाले हैं मुझे नहीं पता। 35 जबकि इनका 35th ईयर इज ऑन, एंड इनका कहीं बैंड बाजा बारात ऑलरेडी बच चुका है। यू नो ही हैड अ अच्छा, ब्रोकन रिलेशनशिप इन द पास्ट। okay, अब वो डिवोर्स हुआ कि जो भी था, बट इट okay, वाज नॉट ए गुड सिचुएशन फॉर हिम। बट दैट दशा इज ओवर नाउ। तो मुझे लगता है कि इनको अब थोड़ा सा ही नीड टू फॉरगेट अबाउट द पास्ट and now focus towards the present situation. So okay, inka bhi the time of marriage for him also will begin from 20th November of this year, and after that things will change. But he has a good side also. He is quite a helpful person. He would like to help anyone, which is good. But इनका research oriented जो mind है, जिसकी वजह से किसी भी चीज को discover और invent कर लेते हैं, that include his thought, वो इनको हमेशा फंसा देती है। तो जो आप अभी कह रही थी, आपने वर्ड यूज किया था, वो इन्हीं के लिए था कि लेट गो करना नहीं आता इनको। दैट इज हिज बिगेस्ट फ्लॉ। गुड फॉर हिज प्रोफेशन, गुड फॉर हिज लर्निंग, everything, but because of not able to ignore things, he has a tendency to crib and complain and react on everything, anything. इसीलिए जो okay, इनका पहला ब्रेकअप हुआ, वो चली गई बेचारी। उसने उनको बार बार राज को यही बोला, राज यू डोंट लेट मी ब्रीथ। ये प्रॉब्लम हमेशा आई होगी। यू आर नॉट गिविंग मी okay, स्पेस, यू आर बिकमिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट मी। एंड वो पॉजिटिवनेस okay. के पीछे केयर है, लव है, बट वो इतना ज्यादा है कि वो लगता है कि आर यू डाउटिंग ऑन मी, ऐसा। तो इनको मैं यही Okay. समझाना चाहता हूँ कि भाई साहब, You have to पहले जो control your emotions. यस, सो वट एवर पहले की बात थी, इट वॉज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, वो हो चुकी है। अब आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि यू नीड टू चेंज दैट अप्रोच, अदरवाइज अब किसी के पास टॉलरेंस नहीं है, कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है। दे जस्ट पैक देयर बैग एंड Correct. गो अवे, और दे विल जस्ट से गेट आउट फ्रॉम माय होम। सो यू नीड टू चेंज दैट, वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. जी। So next is Rishika. Rishika is 13 Feb 1993, 13:28 p.m. So 1:28 p.m. या प्लीज। and Kolkata. Any possibility of abroad opportunity? She wants to go abroad. देखिए, इनका वक्त चेंज हुआ है लास्ट ईयर से, मर्क्यूरी का फेज शुरू हो चुका है। मर्क्यूरी इनके राहु के नक्षत्र में है, which will help her to go out. It is also plays in 9th house of luck. The possibilities are very strong. She is quite a creative person. हर चीज को ब्यूटीफुल तरह से करने का, अगर किसी को कुछ सीखना है तो इनसे सीखे। वेरी हेल्पिंग पर्सन है, एंड पैशन जिंदगी का हिस्सा है। खाली इनको गुस्सा इनका एक प्रॉब्लम जरूर हो सकता है। इनको बहुत जल्दी ये चीजों को फिर रिएक्ट कर जाती हैं। इनके हिसाब से अगर ना हो तो ये बैंड बजा देंगी किसी की भी। तो 27 इनकी एज हो चुकी है। आई डोंट नो शी इज मैरिड। अगर मैरिज हो गई है तो भाई उसको संभाल के रखो, और नहीं हुई है तो थोड़ा सा इनको चेंज करना चाहिए, बिकॉज दैट वुड गो अगेंस्ट हर। एंड शी इज ऑल्सो मांगलिक जॉब, वो बच्चे का पूछ रहे थे, अच्छा, डबल मांगलिक okay. जॉब कह रही थी, तो वो इनका 4 टाइम्स डबल Double. है। तो व्हाट आई एम सेइंग, मंगल है, तो दैट मींस शी नीड टू मैच ए हॉरोस्कोप बिफोर गेटिंग मैरिड। दैट इज माय सजेशन। एमराल्ड इनको सूट करता है, डायमंड या फिर ओपल पहन लीजिए, दैट विल बी गुड। बट शी हैज अ गुड हॉरोस्कोप। गुड हॉरोस्कोप मीन्स गुड लाइफ, हैप्पी लाइफ, लग्जरियस लाइफ। खाली डिफिकल्ट Okay. मत बनाइए जिंदगी को बाय रिएक्टिंग, बिकॉज दैट विल गो। शी इज नॉट अ बैड पर्सन, बट शी हैज नो कंट्रोल ऑन रिएक्टिंग थिंग्स, जो एग्रेशन में कह सकता हूँ। तो पीपल दे गेट हर्ट बिकॉज ऑफ दैट। ये इकलौती इनको एडवाइस है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी हैज अ गुड जर्नी एंड शी रियली वांट टू गो आउटसाइड। अभी तो माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। एवरीवन इज अवेयर, यू नो बिल्कुल. हाउ थिंग्स आर Yes. negative everywhere, and अभी तो even this is not happening, travel is not happening. but अगर आप जाना चाहती हैं तो जिंदगी में एक ही कसम खा के जाइए, no matter what, I have to be in a happy state. Okay. तो ये बहुत तो जरूरी मेडिटेट है। कीजिए और हैप्पी रहिए. हाँ, हैप्पी देखिए, हैप्पी रहिए, मेडिटेट करिए। अभी लोग सुनते रहते हैं, लेकिन वो लोग उसको रियलाइज नहीं करते। उनको लगता है कि अरे यार कुछ और करेक्ट. बताओ, ये तो इससे क्या होगा, इसी से जी होगा। जी. यू नो, जैसे बाबा रामदेव कहते हैं कि योगा से ही होगा, या फिर मैं कहूँ कि करने से ही होगा। तो यू नीड टू बिल्कुल मेडिटेट। बिल्कुल. तो यू या हैव टू नहीं डू तो फिर क्या समथिंग फॉर है, जो योरसेल्फ. हमारी जो माइंड है ना, वो इतना प्रोग्राम्ड है ऑलरेडी कि वो चेंज नहीं होता है। और फिर क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी इतनी डिफिकल्ट हो जाती है कि डिफिकल्ट हो जाता है। करेक्ट. तो जी, तो राज, मैंने आपको ओके. डिवोर्स नहीं करवाया। उनका आया है कि मेरी शादी नहीं हुई, आपने डिवोर्स करा दी। इनका ब्रेकअप हुआ है, वो तो आप बताइए। देखिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म में जब आप सवाल करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा लोचाए उल्फत होता है। डिटेल. जी. तो आपका 100, अगर आपका हॉरोस्कोप करेक्ट है तो मैं दावे से कह सकता हूँ आपका ब्रेकअप हुआ है। आप पब्लिकली आप हाँ यस बोलेंगे कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, बट आई एम 100% श्योर अबाउट इट। और अगर आप कहेंगे कि नहीं हुआ,
तो मैं कहूंगा फिर भाई साहब एक खूबसूरत मोड़ देना ही पड़ेगा आपको जिंदगी में। तो मैं वो आई एम जस्ट जोकिंग, बट ऑन अ सीरियस नोट ही हैड ए स्ट्रॉन्ग ब्रेक इन रिलेशनशिप इन द पास्ट। वो बात नहीं बनी जो ये बनाना जहाँ चाहते थे, लेकिन आपको मैंने एडवाइस जो दिया है उसको मानिए राज, इफ यू आर लिसनिंग एंड इफ यू एग्री विद मी दैट दीज आर योर वीक पॉइंट, जो मैंने कहा था यू आर नॉट एबल टू इग्नोर थिंग्स, तो उस पर आप काम करिए। आई होप यू एग्री विद मी। तो आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज, कम से कम बताइए। देखिए ये लोगों का जी फितरत है, जो उनको ठीक नहीं लगता है उसको तो वो रिएक्ट कर जाते हैं, और जब सारी बातें उसकी ठीक होती हैं उसके बारे में वो लोग नहीं बोलते। यू नो दिस इज जी जी आयरनी। यू नो मैं कोई यहाँ पे आई जादू टोना तो एग्री। कर नहीं रहा हूँ आंख बंद करके। इट इज नहीं अ बट ब्यूटीफुल साइंस। मेरे पास तो अभी भी मैसेजेस इनफैक्ट जिनके मैंने नाम लिए हैं, सब बोल रहे हैं यू आर करेक्ट, एंड अलग से मैसेजेस भी आ रहे हैं स्पेशली, तो दैट आई विल रिप्लाई लेटर। ओके, नेक्स्ट इज शिवाली, शिवाली वलियानी। शिवाली का मैं डिटेल डालता हूँ, लेकिन राज को मैं बताना चाहता हूँ, राज आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। यस रिप्लाई प्लीज प्लीज राज आप बताइए। बोल दीजिए जरा सच सच। हाँ, ओके, डेट ऑफ बर्थ इज 5680 5683। 80 जी 80 थैंक 80 ओ 80 सॉरी टाइम इज 8080 4:10 a.m. प्लेस ऑफ बर्थ 4:10 a.m. New Delhi. New Delhi. She wants to ask about her business. राज ने हाँ नमस्कार किया है ऐसे करके सर करके, तो ही एग्री विद मी। तो व्हाट आई एम सेइंग, देखिए एस्ट्रोलॉजी, मुझे ये सवाल का जवाब मेरे लिए बहुत जरूरी था, मेरे लिए नहीं बाकी सबके लिए, कि व्हेनेवर यू से जी ऑफ कोर्स। एस्ट्रोलॉजिकली। जी आपको भी सलोनी की बात बताना चाहता हूँ। जी एस्ट्रोलॉजिकली पुराने जमाने में गंधर्व विवाह हुआ करता था, यू नो बैंड बाजे नहीं आते थे, किसी के गले में हाथ डाल दिया बिल्कुल आपने, वो उसकी शादी हो गई, 8 तरह के विवाह लिखे जी हुए। तो एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि शादी टूट गई क्या, तो वो शादी नहीं टूटी, या किसी का मांगलिक है, किसी ने किसी को बोला कि अरे इसका तो डिवोर्स, गलत है, वो आंसर रॉन्ग है। डिवोर्स कैन टेक प्लेस एट एनी लेवल। बोला कि स्ट्रॉन्ग मेंटल इमोशनल अटैचमेंट टुवर्ड्स समवन इज कंसिडर्ड टू बी ए मैरिज। मैरिज नॉट एज ए legal or social marriage. Marriage means mental level. करेक्ट So when you are connected with someone, it's करेक्ट considered to be marriage astrologically. So that is what I have seen in his horoscope, because वो एज लेट हो गई थी, तो मैंने कहा पता नहीं इनका, इफ यू रिमेम्बर आई सेड दैट कि या तो इनका डिवोर्स हो गया या फिर इनका बहुत करेक्ट स्ट्रॉन्ग ब्रेकअप हुआ। दिस इज व्हाट आई ब्रेकअप सेड, हुआ बिकॉज उनका एज जी ज्यादा थी। तो जी। राज को इसलिए मैं थोड़ी सी खिंचाई करता था। अब वो कह रहे हैं सर तो सिक ग्रेट हो। राज मुझे वो ग्रेड तो नहीं आप करना है, हैं खाली बिल्कुल। खाली मेरा नहीं नहीं खाली वो एक तो आप ये हैं एज ए एस्ट्रोलॉजर मेरा कर्तव्य था कि लोगों का एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल जो बिलीफ है वो आपके एक मजाक मजाक की आपने एक लाइन लिखी है उससे वो बिलीफ खत्म ना हो। दैट वाज द रीजन आई वाज करेक्ट आस्किंग यू टू मेंशन द करेक्ट राइट आंसर। करेक्ट एनीवेज थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग एट लीस्ट, बिकॉज ही इज अ गुड गाय, गुड स्पोर्ट एक्चुअली। जी, तो इनके बारे में आपने बताया। देखिए इनका टाइम ऑफ बर्थ थोड़ा सा चेंज हो सकता है, जो आपने अभी बताया दिल्ली का बर्थ है 5 जून 1980 4:10 इन द मॉर्निंग। और मेरा पूरा ध्यान राज के ऊपर था क्योंकि मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उनका वो सवाल का जवाब। अच्छा इनका है 4:10 हाँ इन द मॉर्निंग न्यू दिल्ली। नहीं मैं नाम मुझे याद नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग इज इनको शिवाली मैं खाली, हाँ उनका टाइम ऑफ बर्थ रॉन्ग हो सकता है, उनका 1 मिनट पहले का बर्थ हो सकता है, बिकॉज जब अच्छा डॉक्टर टाइम नोट करता है तो वो जी आधे घंटे 45 मिनट्स बाद ही नोट कर रहा होता है टेक्निकली, ओके प्रैक्टिकली। ओके अच्छा तो इनको खाली अपने हॉरोस्कोप को चेक कराना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ जाएगी मैं इनको बताना चाहता हूँ शिवाली को। शिवाली वैसे तो 40 इयर्स की हो गई है, खैर अब तो मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, मैंने एज नहीं देखी एक्चुअली। मैं ये कहने वाला था कि ऐसा ना हो कि आप मांगलिक से शादी कर लो, क्योंकि उस कुंडली में आप मांगलिक हो। अच्छा और ओके जो जो मैंने करेक्ट करी है उसमें शी इज नॉट मांगलिक, बट अब आपने लव मैरिज की है तो चलो कोई बात नहीं, अब हो चुकी है चलो भूल जाओ। दिस ऑलवेज। अब देखिए बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई, बट इट लुक्स लाइक शी इज बोर्न 1 मिनट अर्लियर एंड शी इज नॉट मांगलिक। एनीवेज, बट वो ओके मंगल हो या ना हो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज शी इज द बॉस। तो हस्बैंड को अच्छा कंट्रोल ओके करने का पूरा दारोमदार इनके ऊपर है। शी इज द बॉस एट होम। अगर शिवाली सुन रही हैं तो प्लीज यू राइट, मुझे लगता है कि घर में आप ही की चलती होगी, बिकॉज यू आर क्वाइट अथॉरिटेटिव पर्सन एंड यू आर ए वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बेसिकली एंड क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक एक्चुअली। यू आर ए गुड पर्सन। खाली ये है कि आपके हिसाब से जब चीजें नहीं होती हैं, शिवाली इज लाफिंग हियर, तो अगर आपके हिसाब से चीजें नहीं होती हैं तब फिर आप तलवारें निकाल लेती हैं, यू नो, ये आपका एक वीक पॉइंट है। और ये 1 साल मैं आपको जरूर एडवाइस देना चाहता हूँ शिवाली, कि 18 सितंबर से 1 साल के लिए अब आपका हस्बैंड का नाम रणबीर है कि रणवीर है, लेकिन वो नाना पाटेकर जैसा लगने लगेगा आपको। तो ये मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी रीजन हो सकता है। नाना पाटेकर एक कैरेक्टर का नाम ले रहा हूँ, नॉट हिम, नहीं तो आप मेरे अगेंस्ट केस करवा देंगे। एक अग्नि साक्षी मूवी में उनका कैरेक्टर था, दैट इज व्हाट आई ओह मेंट। माय हाँ गॉड यस जी, तो दैट इज हाउ आई कोट हिम एवरी टाइम। तो व्हाट आई एम सेइंग इज इट इज ऑल अबाउट योर टाइम।
So next 1 year there could be some situation that you will be very you might be frustrated due to no reason even. तो ये बात इनको अभी से अगर पता चल गई, और मे भी आज का शो है, समझ लीजिए शिवाली सिर्फ आपके लिए हुआ, बिकॉज इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग ईयर ऑफ योर लाइफ। तो ये बात आपको पहले से पता चल गई, तो आप कुछ भी नेगेटिव मत सोचिए, कुछ भी रिएक्ट मत करिए, कोई भी कुछ अगर आपके हिसाब से नहीं हो रहा है उसको लेट गो कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए आप कि इट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर हॉरोस्कोप, बिकॉज ऑफ योर टाइम बैड फेज, एंड थिंग्स विल चेंज आफ्टर 1 year। दैट मीन्स फ्रॉम 27th October next year it will be a beautiful 3 years of your life. You have a good horoscope and you will definitely do good career wise in every front. The only thing is जिंदगी का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग दौर आ रहा है, इसको गुजर जाने दीजिए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अगर आप चाहें तो एक येलो सफायर पहन सकती हैं, ये पुखराज आपको जिंदगी भर काम आएगा। और आपका 1 मिनट पहले का बर्थ है, ये मैं बता दूं, जितनी बार आपने कुंडली और एस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाई है या खुद पीएचडी की होगी वो सब वेस्ट हुआ। अब ये नई कुंडली आप दिखाएगा जो मैंने आपको बताई है 4 और 9। ओके, तो डॉक्टर ने गलत लिखा है। देखिए इसमें डॉक्टर की कसूर नहीं है, डॉक्टर्स आर नॉट एस्ट्रोलॉजर्स, और नहीं, उनको लगता है, उनको क्या पता, yes, doesn't उनको क्या matter पता to them. कि 1 मिनट पहले से कुंडली बदल रही थी, उनको क्या पता, उनको जी। लगता है कि हाँ क्या टाइम हुआ है, 4 बज के कुछ मिनट, 4:10 लिख लो, यू नो, अंदाजा देखा। आप घड़ी ससुराल से मिली थी कि रेडियो से मिली थी पता नहीं, तो so there are a lot of things, you know, that way. So human Okay. error is the right word, yeah. जी, okay. So next is 2nd November 1985, हम्म, 7:10 p.m. जी। दिल्ली, न्यू दिल्ली। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक बात बताऊंगा, क्योंकि हमारा 1 hour कंप्लीट हो जाएगा। आई नीड टू टेल यू दैट। जी। इनका कोई सवाल नहीं है। 35th ईयर इनका चल रहा है। मैरिड लाइफ एंड करियर। तो मैं उसी पे आने वाला था। इनका सबसे बड़ा इशू है रिलेशनशिप का, बिकॉज टॉलरेंस की स्पेलिंग आज तक नहीं आई। इग्नोर करना इनको कभी बचपन से सीखा नहीं, और हर छोटी बात पे कैसे बात का बतंगड़ बनाना और बाल की खाल निकालने की फैक्ट्री ऑलरेडी खुल चुके हैं। अब ये तो मेल है या फीमेल? फीमेल। अच्छा, आज बाई चांस इसी तरह के लोग हैं। और जी। ये अभी इनका एक डिप्रेसिंग फेज चल रहा है, जिसपे आपने आज बात करी थी। तो मैं इनको और रिडिक्यूल नहीं करूंगा, मैं इनकी खिंचाई इसलिए कर रहा था इनको रियलाइज कराने के लिए। तो मैं इनको यही बताना चाहता हूँ। नाम क्या बताया था आपने? शेफाली। चलिए कोई बात। शेफाली सितंबर तक टाइम निकल जाने दीजिए, ये वक्त ठीक नहीं है, इसलिए सब आपके साथ हो रहा है। और आप मेरी बात आज मान लीजिए, मैंने आपकी खिंचाई की है आपकी बेहतरी के लिए, तो आप चीजों को इग्नोर करना शुरू करिए। अगर आप मुझे सुन रही हैं तो आप बताइए कि आपकी ये प्रॉब्लम है कि नहीं है, क्योंकि यू आर ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, बट यू कैन नॉट इग्नोर एनीथिंग। स्मॉल थिंग बॉदर्स यू एंड देन यू रिएक्ट। और जब आप रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, बात बिगड़ जाएगी, दरार आ जाएगी रिश्ते में। तो ये मुझे लगता है कि अब आपको अपने थोड़ा सा अप्रोच बदलना चाहिए। एक ही जिंदगी है और इस जिंदगी को हंस के गुजारना चाहिए। दैट इज द ओनली वे। तो अकॉर्डिंग टू मी, योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज सून फ्रॉम September 19, एंड देन देयर विल बी नो डिप्रेसिंग फेज फॉर मेनी ईयर्स टू कम। आपका ये वर्स्ट टाइम था। ओके, तो ये साल निकल गया, वर्स्ट टाइम था। जी ओके, बिल्कुल ठीक है। और ये तो हो गया मैरिड लाइफ के लिए कि करियर के लिए, दोनों के लिए सेम चल रहा था। दोनों के सितंबर से थिंग्स विल बी गुड फॉर हर। या शी इज अमेजिंग। मैरिड लाइफ आल्सो एंड करियर आल्सो। जी, माइंड इनका बहुत शार्प है, बहुत ज्यादा ये डिटेल में जाती हैं। तो दैट इज गुड फॉर हर करियर, बिकॉज देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी मिस्टेक इन हर लाइफ। ओके, so what she should opt for? She said, what should I opt for career wise? देखिए, she can be good into banking, finance, marketing, sales, media, communication, writing। ये इनका या इवन अगर आईटी का इन्होंने कुछ किया हुआ, ये इनमें 10 on 10 है। लेफ्ट हैंड से कर सकती हैं। सॉरी आपका आवाज। I'm saying she can do all things related to this: banking, finance, marketing, sales, media, communication। जी। ओके, और ये हमारा लास्ट मिनट है। आपने एग्जैक्टली 6 o'clock स्टार्ट कर लिया था सलोनी? किया तो था, थोड़ा सा टाइम। एक क्लास ले लीजिए प्लीज, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका। दैट पर्सन इज रियली डिप्रेस्ड। मुझे लगता है वो बीच में कट जाएगा, बिकॉज 1 hour में ऑटोमेटिकली इट विल बी। हाँ, बट मेरा थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा 1 मिनट लेट था शायद। So वो बात मुझे करनी थी, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, मैं इनको सॉरी बोल दीजिए, इनको बोलिए या तो अगर पर्सनल है तो दे कैन कनेक्ट मी थ्रू गूगल, यू नो, एंड फाइंड have their half an hour consultation करा लीजिए। I will do that। देखिए मैं ये कहने वाला था कि मैं जब जी न्यूज में शो करता था, तो एक बार क्या हुआ, मेरी एक एंकर थी, उसका नाम था मैत्रेयी। तो वो आपको देखते उसकी याद आई मुझे, और मैं वहां पे मैंने झगड़ा कर लिया था कि भाई आप उसके ऊपर जो लाइट है वो ज्यादा डाली हुई है और मेरे ऊपर लाइट बहुत कम है। यू नो, मैं लाइट के लिए बहुत पर्टिकुलर रहता हूँ, लेकिन जब आपका फ्रेम बनता है तो मैं बहुत इनसिक्योर हो जाता हूँ। और अगर आपको ध्यान हो, मैं जब से आपसे बात कर रहा हूँ, आई नेवर स्माइल बिकॉज आई एम लुकिंग डल
कंपैरिजन टू योर फ्रेम। तो मैंने क्या किया, उस दिन हंगामा कर दिया, मैंने कहा आज शूटिंग नहीं होगी, आज पहले आप लाइट चेंज करिए। बोले लाइट सर बराबर है दोनों को। मैंने कहा नहीं, तो इसका मतलब कैमरा का कैमरे का लेंस मैंने क्लीन कराया, कैमरा स्विच ओवर कराया। तो जब नहीं माने तो बैतराई ने कहा सर आप ऐसा करिए मेरी चेयर पे बैठ जाइए फिर देख लेते हैं। तो मैं मेरी उसकी चेयर में बैठा, वो मेरी चेयर में बैठी, तो वहां फिर वो ब्राइट लग रही थी और मैं डर लग रहा था। तो